Hello everybody, welcome to the online session of Manula classes. My name is Brujesh and I am the English faculty at Manula classes. In today's session, we are going to discuss some passages. We will be discussing the passages, we will be solving the passages. I want you also to solve the passages since you are joined, and also we will be discussing, analyzing the answers. What is the rationale behind why is an option correct which you didn't think was correct but was correct. We will be also discussing the nature of questions. These passages have been taken from the model paper of CLAT consortium itself, so that you can have fair idea that what kind of questions can be asked in the examination, what can be the approach of the writer, of the passage maker, also how they are going to test your knowledge through inference based questions. Okay, so let us start. आप लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे आई गेस, जिसमें आप पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं एवरी डे 2 पैसेजेस. सो नाउ we have some days left for the examination, so this is our endeavor to present before you some passage solving strategies, and also this session is gonna be very helpful for you once you understand the lecture and watch the video till the end. Okay, so do not forget to watch the video till the end. Before we start, let me tell you the admissions for 1-year program and 2-year program is open. You're most welcome at Manu Law classes. We here guide you, nurture you, also mentor you to get the desired result that you want. In any query, if you have some doubts, you can call us at 9971444054. You can also visit our website www.lawentrancindia.com for more information on our various courses. Alright, as I told you that you have been solving passages for a long time now, so you might have gotten that mastery that is required to solve a passage. If not, still it is not late. You have some 10 days are almost left. Make sure that you're working hard enough and acquiring the knowledge that is required by solving passages as much as possible. अब बड़े ध्यान से सबसे पहले we will be understanding the direction for the passages. This direction has one thing that is very noticeable that I would like to bring your notice upon. Each set of question in this section is based on a single passage. This is quite common, and this direction has been taken from the model paper itself. So CLAT consortium has written this. Now please answer each question on the basis of what is stated or implied. So since here you can see that you will have explicit and implicit kind of questions in the corresponding passages. Now in some instances, so this is the catch, in some instances more than one option may be the answer to the question. So the writer is clarifying here itself कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पैसेज में एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको लगेंगे जो कि सही हैं. आंसर कौन से करने हैं? इन सच केसेस प्लीज चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट एक्यूरेटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर्स द क्वेश्चन. सो जरूरी नहीं है कि दोनों ऑप्शन जो सही है वो दोनों ऑप्शन जो आपको सही लग रहे हैं वो सही है. व्हाट यू नीड टू डू इज रीड द ऑप्शंस कंप्लीटली. कभी कभी आधा ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें लगता है ओ नो ये भी सही है, एंड इसका भी आधा हमने पढ़ा ये भी सही है. सो डू नॉट फॉरगेट टू रीड द होल ऑप्शन. पूरा पढ़ो, क्योंकि हो सकता है इनिशियल आधी बात सही हो बट उसके बाद की आधी बात सही नहीं हो. सो दिस इज दिस इज व्हाट वी वांट यू टू डू व्हेन यू आर सॉल्विंग द पैसेजेस. ओके, सो डिस्क्लेमर आपके सामने है कि मोर देन वन ऑप्शन कैन बी ट्रू. तो इस केस में जनरली होता क्या है, व्हेन एवर यू आर रीडिंग 4 ऑप्शंस एंड इफ देयर इज वन ऑप्शन करेक्ट, सो 2 ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम आती है दो जो सिमिलर से होते हैं उनमें. सो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप दोनों के पूरे ऑप्शंस को पढ़ो ताकि आप समझ सको कि क्या ये आइडिया सपोर्ट कर रहा है फर्स्ट क्लॉज से या नहीं. ठीक है, क्योंकि दोनों क्लॉज सपोर्ट करने चाहिए. कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स मेक सिली मिस्टेक्स ऑल्सो, जिसमें कि दे जनरली डू दैट थिंग, they preferably answer the question which are like not even related, and sometimes it says not in some cases. Okay, so in that time make sure that you are not missing out on that. Okay, so silly mistakes नहीं होना चाहिए जिसमें कि not लिखा हो
एंटोनिम पूछा हो, सिनोनिम बोल दिया आपने, ये नहीं होना चाहिए. ओके, so now let us start. This is the passage. This has been taken from, extracted within edited and revisions from Ramchand Guha's Introduction to Nationalism. So Nationalism is a book which has been written by Rabindranath Tagore. Publisher is Penguin Public Books. Okay, so make sure that you read. You have been reading these kind of books, I guess. So this is the passage. This is quite moderate level of passage. So before we solve passage, I have been telling you what you need to do is read the question first and then mark the keywords that are required. Let me revise. Let me repeat. Mark the keywords. So keyword कैसे mark करते हैं देखो. Which of the following best describes the two opposing forces? So you need to, while reading the passage, you need to find where these two opposing forces. First you need to see that what do you mean by two opposing forces. कौन से ऐसे दो force है जो that Tagore said he detected in himself. So उसने कौन सा डिटेक्ट करा, पाया, है ना, जैसे वायरस डिटेक्टेड इन कंप्यूटर ऐसा बोलते हैं. So इसी तरह से डिटेक्ट मतलब पाना. So which of the following best describes the two opposing forces? So you need to look for two opposing forces while reading the passage. Question number 2. What does the phrase enter the list as used in the passage mean? So this is quite clear whenever you have a question with what, किससे, what से. तो अगर what से कोई क्वेश्चन है so make sure that वो उसमें ही लिखा होगा, साफ सी बात है. सो एंटर द लिस्ट, जैसे ही एंटर द लिस्ट, जनरली क्या है कि यू कैन ब्रेक द वर्ड लाइक एंटर द लिस्ट, मतलब किसी लिस्ट में शामिल हो जाना, इसका लिटरल मीनिंग होता है, बट कॉन्टेक्चुअली इट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग. सो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. while reading, when you interact with this word, क्योंकि ये quoted है, so it means it has been written in the passage itself. So make sure you are looking out specifically for this word and try to decipher the meaning which according to passage is being conveyed. All right, so इस पैसेज के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा, आप आराम से पैसेज को पढ़ो. उससे पहले हम कीवर्ड्स निकाल लेते हैं. इस तरह के हम 4 पैसेजेस सॉल्व करेंगे आज के सेशन में. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिस्टेंट with the author's description of the Swadeshi movement in the passage above. So you can see that okay, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात हो रहा है. ऑथर का डिस्क्रिप्शन कौन सा है जो कंसिस्टेंट होगा इन द पैसेज अबव. ठीक है, सो 4 ऑप्शंस हैं, पैसेज को पढ़ के ही आपको समझ में आएगा ये. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है टैगोर का रीजन. टैगोर कोई रीजन देते हैं फॉर नॉट स्पेसिफिकली नॉट लेटिंग पैट्रियाटिज्म, देशभक्ति, ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी, है ना. ऐसा क्या है जो टैगोर को रीजन नहीं बताता है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टैगोर्स रीजन फॉर नॉट लेटिंग पैट्रियाटिज्म. ऐसा क्या रीजन है जो पैट्रियाटिज्म को वो ह्यूमैनिटी पे विजय होने नहीं दे रहे हैं. सो नाउ बाय रीडिंग दी ऑप्शंस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. द लास्ट क्वेश्चन इज द ऑथर डिस्क्राइब्स टैगोर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स पैट्रियाटिज्म एज एन एग्जांपल ऑफ. सो अभी कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि टैगोर इटसेल्फ. ठीक है, सो ऑथर डिस्क्राइब्स टैगोर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स पैट्रियाटिज्म एज एन एग्जांपल ऑफ. सो नाउ पैट्रियाटिज्म का एग्जांपल अकॉर्डिंग टू ऑथर टैगोर का एटीट्यूड क्या है पैट्रियाटिज्म की तरह, वो आपको बताना है. ठीक है, सो हियर इज द पैसेज गाइस. आपको इस पैसेज को 4 मिनट में करना है. उसके बाद I'll come and discuss the same with you. Okay, so I guess you have understood what is requisite here. So please start solving.
All right, so welcome back, guys. I hope you have read the passage completely. Now what you need to do, answer the question. So before you go ahead, just discuss what you just read. So in a letter written in January 1885 to his friend Pramatha Chaudhary. So this is an extract from the history, you can see. So let us see what further question requirement is there. First question says, which of the following best describes the two opposing forces that Tagore said he detected in himself? Now, how would you eliminate it? A force encouraging him to write more, or force encouraging him to paint more? Do you think this is relevant with the passage? No. So immediately you can eliminate. Now the next one, a force encouraging him to travel widely, or force encouraging him to travel only to the west? Again, ट्रैवल से कोई रिलेशन बात हुई ही नहीं है पैसेज में, अगर आप ध्यान से देखो तो. सो अ फोर्स एनकरेजिंग हिम टू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट एंड अ फोर्स एनकरेजिंग हिम टू टेक अप आर्म्स. नाउ वी नीड टू पुट दिस ऑप्शन into consideration before we eliminate it. A force encouraging him to remain calm and a force encouraging him to fight. So what do you think is the correct answer according to you? So अगर हम बात करते हैं कि बोल रहे हैं what is the following, which of the following best describes the two opposing forces. So two opposing forces कौन से हैं ये देखा जाए. So option D is the correct one. Why? Because these are two opposing forces. To remain calm or to fight is two opposing forces. Here the literal meaning is a force encouraging him to join the national movement, a force encouraging him. So this generally talks about a force. Which force? It is not mentioned even. But here a force encouraging him to remain calm. So this is one of the forces, and the other one a force encouraging him to fight. So these are two opposing forces. So opposing forces are there. So that is why the most relevant answer would be D. So जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ था, more than two options can be correct one. तो आप देख सकते हो उसका पहला सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ये कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, even though C seems like or likely to be true. So option D is correct in this context. Now question number 2, what does the phrase enter the list as used in the passage means? चलो eliminate करते हैं. To become contemplative and thoughtful. So do you need to know the meaning of contemplative? Contemplate का मतलब सोचना, गहन विचार करना, and thoughtful. So कहीं से enter the list का मतलब है. अब हम वापस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, must go back and see where this word writes. Enter the list. Now read the line. Hence the swing of the pendulum between passionate pain and calm detachment, between lyrical abandonment and philosophical, between love of my country and mockery of patriotism, between an itch to enter the list and a longing to remain wrapped in thought. So what do you think? कि एक तरह से itch हो रहा है कि नहीं एंटर कर लेते हैं, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं, एक आशा है कि वहीं पड़े रहो, अपने सोच में पड़े रहो. So now let us see. First one is not to become involved in a competition or challenge. Okay. To avoid interaction with other people. Okay. To avoid crowded places. So to avoid crowded places doesn't go here. Now to avoid interaction with other people, again not. So option B is the correct one here. To be involved in a competition or challenge. So according to passage, this best suits what we just discussed. Okay. So hope this answer helps you. Now question number 3, which of the following would be consistent with the author's description of the Swadeshi movement in the passage? So Swadeshi movement का authors का description क्या है ये आपको बताना है. Okay, so rejecting Western ideas and merchandise, sending children to study in foreign university. No, इस तरह से आप नहीं कर सकते हो. रिजेक्टिंग इंडियन आइडियाज़ पॉसिबल नहीं है. अगर हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं और इंडिया के ही आइडियाज़ को रिजेक्ट करो तो गलत हो जाएगा. सो अगर ये दोनों नहीं है तो ऑल ऑफ द एबव भी गया. सो नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन, रिजेक्टिंग वेस्टर्न आइडियाज़ एंड मर्चेंडाइज. ठीक है. सो अगर आप पढ़ोगे उसमें यू विल फाइंड दैट देयर वाज अ क्लियर अपोज ऑफ दीज थिंग्स, द वेस्टर्न आइडियाज़ एंड क्लोथ्स.
Now, which of the following best describes Tagore's reason for not letting patriotism triumph over humanity? Okay, so universal humanity and love for one's God are more important than love for own country. Okay, this one seems to be kept into the consideration. So let us see. Western science and technology are more advanced than Indian spiritualism. कहीं से कोई relation ही नहीं है passage में. The West has a restless energy and will to action. देखो just because कि there was a word restless जरूरी नहीं है कि ये option आपका सही हो जाए, है ना. So इसलिए ये words पे मत जाना. The West has a restless energy and will to action. No. The Indian thought is peaceful and therefore opposed to action. Yeah, I would say कि ये related है थोड़ा सा, but this is again a not correct answer. So first option, universal humanity, जो पूरी वैश्विक ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, एंड लव फॉर वंस गॉड, किसी परमात्मा के प्रति प्यार जो है, आर मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी है लव फॉर ओन कंट्री. तो ये टैगोर का रीज़न है कि उन्होंने पहले तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके बाद फिर उन्होंने बैकआउट करा. So इसलिए बोल रहे हैं which of the following best describes Tagore's reason for not letting patriotism triumph over humanity. तो ये एक रीज़न था कि उन्होंने ह्यूमैनिटी से को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया लव फॉर आवर ओन कंट्री से. The last question in the list is the author describes Tagore's attitude. So author ने टैगोर का एटीट्यूड कहाँ कैसे डिस्क्राइब किया है पेट्रियाटिज्म के प्रति एग्जाम्पल के द्वारा, वो हमें देखना है. ध्यान रखना कि इसमें आपके बारे में कोई बात नहीं हो रही है. सो डू नॉट ओवर थिंक, जो पैसेज में लिखा है वही समझना है, ठीक है. सो लेट्स से कि अगर आपका कोई ओपिनियन मांगा होता सो यू कैन थिंक अबाउट इट अ बिट, बट अभी यहाँ पे आपका ओपिनियन नहीं मांगा गया है. सो यू हैव टू स्टे टू द पॉइंट्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज इटसेल्फ. सो हिज लव फॉर ऑल थिंग्स वेस्टर्न एंड रिजेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स इंडियन. डू यू थिंक ये कहीं से मैच कर रहा है? नो. His idea of the form that protest against British rule should take, again no. His effort to synthesize East and West. अब देखो क्या है, the author describes Tagore attitude towards patriotism. So patriotism के हिसाब से टैगोर का एटीट्यूड ये था कि दोनों को सिंथेसाइज कर दे, मिला दे आपस में. His love for deep and contemplative thought. No. So option C only remains the correct option here in this passage. So अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने ध्यान से मिलाया, so there are chances in the exam that कि आपको सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हो. सो आई वुड से कि वहाँ पे ऐसे कोई सा भी ऑप्शन है जिसमें आप 50-50% को लेकर चल रहे हो, जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता और ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है. इन दैट केस लीव द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप उसे ऐसे क्वेश्चन को मार्क करते हो बिना समझे, सो देर आर चांसेस कि वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच यू आर इन कन्फ्यूजन और यू थिंक दैट ये भी सही है और ये भी सही है. until or unless you are confident about an option after critically analyzing the questions, तभी आप करो, ठीक है. So let us go and see what is the second passage. This is the second passage. Again it is in one slide, so I would be giving you 3 minutes. Just go through the passage, but before that I would recommend you go to the question. देखो क्वेश्चन को पढ़ने से एक फ़ायदा है. फ़ायदा क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो बिना पैसेज को पढ़े आपको जस्ट पता चल जाता है. एंड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैन ऑल्सो बी अज्यूम्ड कि क्या ये पैसेज जो मैं करने जा रहा हूँ ये एक स्टोरी का एक्सट्रैक्ट है, क्या ये पैसेज जो मैं करने जा रहा हूँ ये किसी हिस्टोरिकल बुक से है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है. जस्ट बिकॉज रीडिंग द क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन को देख के आप समझ जाओगे कि टाइम टेकिंग है, जल्दी हो सकता है. अभी इस केस में देख लेते हैं, अभी हमने पैसेज नहीं देखा. क्वेश्चन सेज व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिड हर फादर ट्रीट हर मदर विद कंटेम्प्ट. तो ईजी है ना, फादर मदर स्टोरी की ही बात हो रही है तो आप आराम से कर लोगे. देखो बिकॉज शी हैड गिवन अ बर्थ टू अ डॉटर, शी वाज रेगुलरली इल बिकॉज ही फेल्ट दैट ही इज मैरिड बीनीथ द पोजीशन बिकॉज शी वाज नॉट अ गुड कुक. सो इसे समझ में आ रहा है कि दिस इज अ सिंपल पैसेज, वन ऑफ द सिंपल पैसेजेस, क्योंकि 2 पैसेज इजी ही आने वाले हैं आपके क्लैट पैसेज एग्जाम में, ठीक है. सो 2 पैसेज इजी, 2 पैसेज मीडियम एंड 2 पैसेज डिफिकल्ट आने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि हाँ
आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा और आपने पैसेज को पहले पढ़ा तो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी लिखा हुआ है वो टॉप टू एंड तक आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन पे जाने के बाद फिर से वापस पैसेज पे आओगे। इवन तो दिस लुक्स लाइक अ टीडियस प्रोसेस कि पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना, क्वेश्चन को पहले पढ़ने का फायदा है, यू डू नॉट हैव टू शो योर मास्टरी कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। नो, यू हैव टू आर्टिकुलेटली सॉल्व द पैसेज। जरूरी नहीं है कि पूरा पैसेज अच्छे से कॉम्प्रिहेंड किया तभी आप आंसर कर सकते हो। टू द पॉइंट जिस पे आपने मार्क करे हुए हैं, अगर वो पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आई गारंटी कि आप आराम से पैसेज कर लोगे। ठीक है, हाउएवर ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े कर लो, है ना। पैसेज रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रिहेंडिंग इज important at the same time. Make sure that when a body wants to eliminate more than 70,000 students, it will definitely make a paper that is difficult. So do not think कि बहुत आसान से पेपर आने वाला है। No, I would recommend अपनी तैयारी आप पूरी बहुत ही अच्छी रखो। ठीक है, so क्यों लगता है ऑथर जो है did her father treat, ऑथर अकॉर्डिंग टू ऑथर कि did her father treat her mother with contempt, उसकी मम्मा के साथ क्यों कंटेम्प्ट के साथ मतलब दुर्व्यवहार किया करता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। इन्फर्ड मतलब जो implied information है जो आप समझ पाते हो। एज द रीजन वाई द ऑथर्स फादर्स फैमिली वॉज हैप्पी टू लेट मासी टेक द ऑथर अवे। सो ऑथर को क्यों ले गई उसकी मामी और क्यों मासी और क्यों ले जाने दिया, क्यों हैप्पी थे पेरेंट फादर्स फैमिली, ऑथर के फादर्स फैमिली, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। इस पैसेज में आपको इनिशियली तो थोड़ा गुस्सा आएगा क्योंकि पूरा डिस्क्रिमिनेशन है, बट एट द लास्ट इट विल बी लाइक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं जो बुरी लगती हैं, बट बाद में जब आप पीछे मुड़ के कनेक्टिंग डॉट करते हो, यू विल फाइंड ओके अच्छा हुआ ये हुआ था, अदरवाइज मैं यहाँ पे ना होता। ठीक है, सो डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो नाउ व्हाट डज द वर्ड एडामेंट एज यूज इन द पैसेज। देखो सबसे पहले इस तरह के वर्ड्स के लिए आपको एडामेंट का अगर मीनिंग आता है तो बड़े आराम से कर लोगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मान लो मीनिंग नहीं आता तो सबसे पहले देखो कि एडामेंट यूज कहाँ हुआ है, क्योंकि लिख रहा है एडामेंट एज यूज इन द पैसेज मीन, तो वहां से आप डिसाइफर कर सकते हो इसकी मीनिंग को कि हाँ ये इसका मतलब हो सकता है। Now, based on the information set out in the passage, which of the following is most accurate? इनमें से कौन सा सबसे सही है? ठीक है, based on the information set out in the passage, कि इस पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आप पैसेज को पढ़ोगे, है ना। एक नज़र इस पर भी डालना ईजी होता है। सो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप, सम्स अप मतलब एक समराइज कर रहा है द ऑथर्स मेन पॉइंट। ऑथर का मेन पॉइंट जानने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यू सी दैट आइडिया दैट यू आर गोइंग टू मार्क हैज़ बीन मेंशन इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर जगह। ऐसा नहीं कि ऊपर में कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, नीचे में लाकर कुछ ऐसा एंड करा है अच्छा सा, तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते। डिस्क्रिमिनेशन शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एवरी पैराग्राफ, है ना। इट शुड बी द जेस्ट इन एवरी पैराग्राफ, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की ही बात हो रही है, तब जाके आप आंसर कर पाओगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स ऑफ द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज अबव। सो मेन पॉइंट पाने के लिए पढ़ना होता है आपको पैसेज को। ठीक है, 5 हो गए। अब हम आपके सामने ये पैसेज लाते हैं। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग 3 मिनट्स एंड यूटिलाइजिंग दिस टाइम बाय रीडिंग द ऑप्शंस, बाय रीडिंग द पैसेज वेल। आई विल बी ज्वाइनिंग यू इन 3 मिनट।
All right. So hope you understood this passage. It simply talks about discrimination against the education. When a lady is not educated, the person who married had discrimination. So see, Ma always had a rough time in dad's house. He, an undersecretary in a civil service, thought he had married beneath his position. जिससे आप देख रहे हो एक सामने ही आपके आंसर आ जा रहा है and treated Ma with contempt. ठीक है. So since ये passage क्लैट कंसोर्शियम नहीं बनाया है तो आप देख सकते हो कि एक दो क्वेश्चन बहुत इजी भी आने वाले हैं. सो डू नॉट हैव टू लूज योर हार्ट. बी वेरी वेरी पेशेंट व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि इतने सारे पैसेज को देख के आपको घबराना नहीं है. ठीक है. सो he felt she deserved an opinion shared by the rest of the family as well. So as after year passed by without any sign of a child being born into the family, Ma began to lose hope of regaining any respect or status within her husband's household. Now, the inevitable followed. Inevitable means जिसे टाला नहीं जा सकता. Followed. She was ordered around, overworked, underfed, and often beaten. So these was the like miserable condition of author's mother. उसे यहाँ वहाँ बुलाया जाता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, कम खाना खिलाया जाता था और समय समय से उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था. तो शी वुड रेगुलरली बी इल, इसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहा करती थी. दिस इज़ नॉट क्राइटेरिया नाउ, बट ये पहले हुआ करता था. इट सीम दे वर वेटिंग टू सी द एंड ऑफ हर. मतलब यहाँ बोल रहा है कि ऐसा लग रहा, ऑथर को ऐसा लग रहा है कि वो चाहते थे कि वो ना रहे. शी वॉज हेजिटेंटेडली टोल्ड डैड शी वॉज एक्सपेक्टिंग. सो फाइनली उन्होंने बोला कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग नाउ मीन्स शी इज़ प्रेगनेंट. नो वन सीम्ड टू इंथुसियास्टिक. कोई उतना उत्साहित नहीं था और हैप्पी. तो उत्साहित. ठीक है. नाउ द डिलीवरी वॉज वेरी डिफिकल्ट. जो डिलीवरी हुई डिफिकल्ट हुई. माई बर्थ वॉज प्रीमेच्योर, मतलब समय से पहले. व्हेन दे लर्नड दैट द चाइल्ड वॉज अ गर्ल, पहली बात वो लड़की है, दे स्टॉप्ड कमिंग टू द हॉस्पिटल. ठीक है. सो इन अर्लियर टाइम में ऐसा हुआ करता था. सो Ma died a week later. Unfortunately, the author's mother also died एक सप्ताह बाद. They wanted, and the reason was this only, कि ऐसा नहीं होता. So they wanted nothing to do with me. So just mother ही नहीं रही तो फिर वो चाहते थे कि author से क्या मतलब. An ugly runt of a girl with shriveled up skin fit only to follow her no good stubborn mother out in this world. ठीक है. मदर कैसी थी? थोड़ी जिद्दी. They were only too happy to let Masi take me off their hands and away to her ancestral home in a small coastal Konkan village, Parvi, where she lived with my grandmother, her mother, Aji. So Masi बच्चे को ले गई क्योंकि मदर ही नहीं रही, and they had no inclination also. तो इसलिए एंड रीज़न भी यहाँ दिया हुआ है. हमारे पास एक क्वेश्चन भी था कि क्यों ऐसा हुआ. So the village doctor shook his head sadly on looking at me, but Masi was adamant and stubborn. Both are जिद्दी. As her sister had been. जैसे उसकी मदर थी वैसे ही उसकी मासी भी थी. डॉक्टर ने थोड़ा सा दिखा बच्चे की कंडीशन को, उसे लगा कि कुछ सही नहीं है. In that house I was reared purely on Masi's greed and Aji's determination. So Aji मतलब grandmother and Masi. Determination means निश्चय and loving care as they nursed me. Nurse मतलब बहुत ध्यान रखना. With ragi extracted diluted milk, cow milk, soft-handed pounded rice and coconut. Day after day they labored. बहुत परिश्रम किया. As a baby they fed me the ragi extract mixed with diluted milk and the starch water from boiled rice. इसे मान बोलते हैं. A little older and they made ragi porridge, then ragi bhakri, roti, laddus, sevaiya, and a miracle took place. Masi and Aji watched me grow from strength to strength. यहाँ तक की स्टोरी आपको थोड़ी दुखद रही होगी, लगी होगी, और लिटरली है भी. किसी भी सोसाइटी में ये अनएक्सेप्टेबल है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना. नाउ आई एम 25. अभी जो है आई रेफर्स टू द ऑथर. ये बहुत जरूरी है समझना इस चीज़ को. A foot taller than Masi. Masi से भी एक फुट बड़ी हो गई है. Completing my post graduation studies in medicine. So finally you can see that the author became a doctor, right?
तो लास्ट लाइन में ये बात पता चलता है कि ऑथर जो है वो डॉक्टर बनी और ये वही ऑथर है जिसे कि उन लोगों ने ले जाने दिया था जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट ऑफ अ गुड हेल्थ, शी वॉज अगली रंट गर्ल, जैसा कि इस पैसेज में मेंशन है. सो दिस लाइक वेरी सैडली व्हेन आई रीड दिस पैसेज इट सैडन्स मी, बट अल्टीमेटली ये लाइन मुझे बहुत खुशी देती है कि विद द डिटर्मिनेशन ऐसा दैट गर्ल बिकेम अ डॉक्टर. बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो पाता. So now question says why according to the author did her father treat her mother with contempt? So it is crystal clear कि क्या हुआ था, because she had given a birth to daughter. क्या ये रीज़न था? नहीं, कंटेम्प्ट तो पहले ही किया करते थे. शी वॉज रेगुलरली इल, नहीं, ये उनके कंटेम्प्ट की वजह से ऐसा होता था. तो ये भी गया, ये भी गया. नाउ बीनीथ, बिकॉज ही फेल्ट ही हैड मैरिड बीनीथ हिज पोजिशन, ये क्लियरली मेंशन था इस पैसेज में. बिकॉज शी वॉज नॉट अ गुड कुक, ऐसा कहीं मेंशन नहीं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन here. Now, which of the following can be inferred as the reason why the author's father's family was happy to let Masi take? Now, because the child was a girl, पहली बात वो लड़की थी, आना बंद कर दिया था उन्होंने. अगली थी, स्मॉल थी, वीक थी. पैसेज में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस बात को, सो कंसिडरेशन के लिए रखते हैं क्योंकि तुरंत मार्क करना सही नहीं होता. बिकॉज द चाइल्ड वॉज नॉइजी एंड ट्रबलसम, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है. बिकॉज द चाइल्ड वॉज बॉर्न एट एन इनऑस्पिशियस, मतलब अशुभ टाइम में पैदा हुई थी, ये भी कहीं मेंशन नहीं लिखा हुआ है. बिकॉज द चाइल्ड वॉज अंडर नरिज्ड एंड वीक, हाँ ये बात तो थी कि वो अंडर नरिज्ड थी और वीक थी, लेकिन ये एक रीज़न नहीं हो सकता कि मासी को ले जाने दिया. ठीक है, गर्ल थी, मदर नहीं थी, ये रीज़न था. सो आप देख सकते हो कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, लेकिन द ऑप्शन ए कैप्चर्स द सेंस ऑफ द पैसेज, तो इसलिए ए जो है वो सही है, रेस्ट इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द वर्ड एडामेंट इज यूज्ड इन द पैसेज मीन? तो एडामेंट मैंने पहले ही बताया, इजली स्वेड बाय अदर्स ओपिनियन, ये तो बहुत फ्लैक्सीबल लोग हैं तो ये नहीं हो सकता. फ्राइटेंड और स्केर्ड नहीं हो सकता. हार्ड वर्किंग एंड टफ, ये एक अलग क्वालिटी है हार्ड वर्किंग एंड टफ होने का, लेकिन एडामेंट मतलब वो नहीं होता. तो रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और चेंज वन माइंड, ये रहा आपका एडामेंट मतलब जिद. 4, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन सेट आउट इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट, कौन सा आपको सही लगता है जो पैसेज में मेंशन है? मासी एंड आजी वर केयरलेस, ऐसा देखते ही आप काट दो क्योंकि उन दोनों ने उन्हें पैदा किया अच्छे से, पैदा नहीं, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, अच्छे से खिलाया और अच्छे से पढ़ाया. ठीक है. नेक्स्ट, मासी एंड आजी पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टडी मेडिसिन के बारे में तो लास्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ था, तो ऐसा कहीं नहीं है कि उन्होंने प्रेशर किया बच्चे को पढ़ने के लिए. मासी एंड आजी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लव इन रेजिंग द ऑथर, ये बात बिल्कुल सही है, हमने ऐसा पढ़ा, पर अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है. मासी एंड आजी वर फोकस टू टेक केयर द ऑथर अगेंस्ट देयर विशेस, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नाउ लास्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप, सो पूरे सम अप करना है तो ध्यान से देखना होगा क्या ऐसा था जो पूरी आइडिया पूरे शुरू से लेके अंत तक को बताता है. तो वेमेन शुड नॉट मैरी अबव देयर पोजीशन इन लाइफ एज देयर हस्बैंड वुड नेग्लेक्ट देम, ये कोई सोसाइटी का रूल नहीं है, तो ये एकदम गलत बात है, ये आइडिया हो ही नहीं सकता ऑथर का मेन, है ना. इस तरह के ही बैड प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए इस तरह की एक्सट्रैक्ट को लिखे जाते हैं, इस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, अदरवाइज ना लिखा होता तो कौन जानता, है ना. मूवीज़ जो हम देखते हैं दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑन सम स्टोरीज लाइक दैट ओनली. अभी इसी सब्जेक्ट पे मूवी बना होगा या बनाया जाए, सो दैट विल बी अ फेम. नाउ ऑप्शन बी, मासी एंड आजी ब्रॉट अप द ऑथर विद लव एंड डिटर्मिनेशन अगेंस्ट ऑल odds and despite her father's family rejecting her. Okay, this one can be the one options जिसे हम अंडर कंसिडरेशन रख सकते हैं. मासी एंड आजी वर एक्सपर्ट्स इन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि वो लोग एक्सपर्ट थे, और एंड वर मेडिकली क्वालिफाइड, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि मेडिकली वो क्वालिफाइड थे बीमार बच्चों को देख रेख करने के लिए. द ऑथर इज टॉलर देन मासी बिकॉज ऑफ द जीन्स शी इनहेरिटेड फ्रॉम, इससे भी कोई मतलब नहीं है. सो मेन आइडिया क्या है कि चाहे कितने भी ऑड्स रहे हो, मासी ने और आजी ने उस बच्चे को अच्छे से पाला, है ना. मासी एंड आजी brought up the author with love and determination against all odds मतलब बहुत सारी परेशानियाँ थी. and despite her father's family rejecting, ये उनके फादर के फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था फिर भी. so you can see the result. okay, so now moving on to the next passage is little moderate for 2 slides, so मैं आपको 2 मिनट दूंगा दोनों ही पैसेज के लिए. मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस एंड ब्रिंगिंग इट इनटू द प्रैक्टिस. आप एग्जाम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, R&D नहीं कर सकते, सो मेक श्योर ये पहले से ही डिसाइड कर लो कि किस सेक्शन में आपको कितना समय देना है
प्लस अगर किसी सेक्शन में ज़्यादा टाइम ले लिया सो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनफोर्सिंग सिचुएशन हो सकती है. सो डू नॉट गेट डिजेक्टेड और बहुत फ्रस्ट्रेट ना हो जाना. बहुत ही काम होके आप अपने आंसर को करो. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस जो आपको एकदम एग्जैक्टली सही लगे एंड ट्राई टू स्कोर गुड मार्क. According to the passage, which of the following actions can be rightly justified by the opportunity cost principle? So सबसे पहले opportunity cost principle क्या होता है, इस बात को समझना पड़ेगा while reading the passage. ठीक है, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने 3-4 केस दिए हुए कि ये केस होगा तब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल आएगा, ये केस है तब. तो whenever you find this kind of a word that you're not familiar with, so your first priority is to go to the passage and prioritize yourself on finding out the meaning of opportunity cost principle. अगर नहीं आएगा ना तो कर नहीं पाओगे ये वाला passage. Now, which of the following is not a correct inference from the passage? So, not a correct. ठीक है, so इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि students make mistake, क्योंकि not पूछा गया है तो उसमें बहुत सारी लाइनें एकदम same as it is उतारा गया होगा जो कि लगेगा कि हाँ ये तो है, and if you neglected कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर वो गया. इसलिए हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट इन्फरेंस नहीं होगा. ठीक है ना. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रायल बलून गिमिक. सो ट्रायल बलून गिमिक को आपको समझना है. अगेन सेम क्वेश्चन एज द नंबर 1 जैसा पहले था उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज कि जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है. सो ट्रायल बलून गिमिक का मतलब आपको खुद नहीं निकालना है बट पैसेज से एक्सट्रैक्ट करना है. Which of the following statement is authors most likely to agree with? ठीक है, अब इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है कि ऑथर कौन से स्टेटमेंट से ज़्यादा सहमत होगा. ठीक है, 4 ऑप्शन में से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ही है हमारे पास. सो लेट अस स्टार्ट. Here is the first slide for you. I will be giving you 2 minutes for the same. Your time starts now.
All right, hope you have read the passage and understood the gist of the passage. So let us discuss the question first. So according to the passage, which of the following action can be rightly justified by the opportunity cost principle? ऐसा क्या है? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल को पहले अगर आपने समझा होगा पैसेज के माध्यम से, तो आपने देखा होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल वो होते हैं कि जैसे अगर आपने कहीं पे कुछ समय देकर कुछ बचाया तो उसका आपने बेनिफिट उठाया नहीं. लेट्स से कि आई ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन टू सेव टाइम, तो जो मैंने सेव करा उस समय को, मैंने उस समय के साथ क्या करा, सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल. ठीक है, अब हमारे सामने चार ऑप्शन है कि सपना एक लड़की है जो यूटिलाइज करती है अपने टाइम को. सी स्पेंड्स इन कैब, ठीक है, वो कैब में जाती है ऑन हर वे टू वर्क एवरी डे, सीइंग मीम्स दैट हैव पोटेंशियल एंड गो वायरल. तो मीम देखना कहाँ तक बेनिफिशियल है ये आप खुद जानते हो, तो ये एक गलत आंसर हुआ. ठीक है, नेक्स्ट, राजेश चोज द प्रोफेशन ऑफ अ ट्रैफिक पुलिसमैन ओवर दैट ऑफ अ रेगुलर पुलिसमैन डिस्पाइट द फॉर्मर बीइंग मोर डेंजरस टू हिज रेस्पिरेटरी हेल्थ. ये भी देखो ऐसा कुछ खास काम नहीं किया इन्होंने, क्योंकि वो पिछला चोज द प्रोफेशन ऑफ ट्रैफिक पुलिस ओवर, तो ट्रैफिक पुलिस में क्या धूल धक्कड़ नहीं होगी, वहाँ भी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, ओवर दैट ऑफ अ रेगुलर पुलिसमैन, है ना. तो ये भी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा. इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिज बीच सैक इन गोवा ओपन इन समर, प्रताप chose to close it and open a cafe in the hills of Himachal Pradesh which attracts more tourists in the during this time. अब ये ऑप्शन देखो बड़े ध्यान से, आपको लगता है कि हाँ इसने कुछ अच्छा काम करा. अच्छा काम मतलब इसने कुछ क्लोज किया तो उसकी जगह पे कुछ बेनिफिशियल करा. ठीक है, सो गोवा में बहुत गर्मियों में उन्होंने अपना जो भी शॉप था उसे बंद करा और उन्होंने क्या किया, हिमाचल प्रदेश में एक अपना कैफ़े खोला जिसमें कि टूरिस्ट आते हैं. दिस इज़ अ बेनिफिट. Christine was compelled to quit her job because her mother was diagnosed with a terminal illness and needed someone to care for her. यहाँ पे भी options नहीं है, so you can see that only option C captures the essence of the passage and that is the correct option. Question number 2, which of the following is not a correct inference from the above passage? देखते हैं. We have become more efficient in the managing our time due to phenomenon of home delivery. ऐसा बिल्कुल नहीं है, हालांकि the concept is same. ये पैसेज इसी बारे में डिस्कस करता है कि हमें ये बनाता है, यहाँ पे बोल रहा है कि हमें बोल रहा है एफिशिएंट बना दिया है, लेकिन पैसेज का होल उद्देश्य तो यही है ना, वेन एवर वी ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन वी थिंक कि हमारा समय बचेगा, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज बोल रहा है. अब पैसेज ये बात प्रूफ नहीं हुई, यहाँ पे लोग अपना टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल में लगा देते हैं अगर वो कहीं से अपना समय बचाते हैं. तो now we have only now begun to realize the adverse consequences of home delivery. ये भी एक करेक्ट इन्फरेंस नहीं हो सकता, है ना. ठीक है, सो वी हैव पुट दिस ऑप्शन अंडर ऑब्जर्वेशन. अभी ये क्या है, वी हैव ओनली नाउ बिकम द वी हैव ओनली नाउ बिगन टू रियलाइज द adverse consequences of home delivery. No. While it appears that online shopping saves time, the shopper who has saved time may in turn waste it. So अगर वेस्ट कर रहा है in doing things on internet their value, so अगर ये करेक्ट होता है इन्फ्रेंस तो हाँ ये कह सकते थे, लेकिन ये नॉट हमें पूछना, यहीं पे आपसे गलती हो सकती है. The trickiest aspect of home delivery is to stretch to be completed immediately prior to the parcel reaching to the customer. ठीक है, ये भी अगेन इट इज़ इनकरेक्ट. सो ये सारे ही सारे सपोर्ट में हैं, दीज आर इन सपोर्ट ऑफ द पैसेज कि हाँ हमें अभी एडवर्स कॉन्सिक्वेंस के बारे में धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया है. दूसरा कि हाँ लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं. फिर तीसरा कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है लास्ट तक आने में. ठीक है, सो ऐसा कौन सा है जो कि सही इन्फ्रेंस नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. क्यों? क्योंकि हमें एफिशिएंट नहीं बनाया. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट इन्फ्रेंस. वी हैव बिकम मोर एफिशिएंट, नो, इन मैनेजिंग आवर टाइम ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ होम डिलीवरी. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. हालांकि उद्देश्य तो यही था पैसेज को लिखने का और बताने का कि हम बने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ the above passage which of the following would be the most appropriate meaning of the term trial balloon gimmick. ठीक है, तो ट्रायल बलून गिमिक क्या, शॉपिंग के टर्म में ट्रायल का मतलब क्या होता है, चेंज करना. ऐसा आप खुद से नहीं करोगे, पैसेज को देखो, आंसर को देखो, ऑप्शन को देखो. एन एक्सपेरिमेंटल मेजर टेकन टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स विदाउट मच
विदाउट मच थॉट ऑफ इट। ओके, ये बोल सकते हैं पैसेज को पढ़ने के बाद। एन एरोगेंट मूव, गलत। measure which is innovative and is likely to bring about a drastic change in customer behavior, again no। a move that comes to an exorbitant cost, no। so ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसे करा गया है, which has been done to to make the to get the attention of the customers without giving a much thought। so it is kind of trial, R&D सुना होगा आपने, so research and development, under that it comes। Which of the following statements is the authors most likely to agree with? इसमें से ऐसा कौन सा है जिससे ऑथर अग्री करेगा? आप अग्री करेंगे वो मतलब नहीं है, ऑथर का अग्री करना इस स्टेटमेंट से जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग एंड होम डिलीवरी हैव हेल्प्ड पीपल ऑप्टिमाइज द टाइम अवेलेबल फॉर देम टू डू थिंग्स दैट आर ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम। आपको ऐसा लगता है कि ऑथर इस बारे में अग्री करेगा आफ्टर रीडिंग द पैसेज? नो। Now, home delivery allows customer to make prudent choices, okay, since they can order things in different color and sizes, and in return that one that they do not like। देखो, आपके नज़रिए से ये सही हो सकता है, बट क्या लगता है ऑथर जिसने पैसेज को लिखा है वो इससे सहमत होगा? नहीं। सो ऑथर का सहमत होना पैसेज को नहीं बोलना है आपको, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी इज चेंजिंग the innovative landscape of the world by representing complex and unprecedented problems to the company। तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, यूज हो रहा है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लास्ट माइल डिलीवरी में इज चेंजिंग, चेंज हो रहा है द इनोवेशन लैंडस्केप इन द वर्ल्ड बाय प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम टू द कंपनीज। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट दिस कैन बी समथिंग दैट विल द ऑथर लाइकली टू अग्री विथ? No। The last option which remains, that is one must factor the environment cost, one must factor the environmental cost and other costs in relation to our ecosystem when placing orders for home delivery। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पैसेज को, पहले पैसेज में ऑथर ने प्रॉब्लम को बताया है, उसके बाद उन सारे प्रॉब्लम्स को बताया है which people are considering। when you order online you think that we are saving your time and other thing, but वहीं कहीं ना कहीं ऑथर ये भी चाहता था, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इट वांट्स द ऑथर वांट्स योर अटेंशन टुवर्ड्स कि आप कुछ भी ऑर्डर करो तो इस बात का ध्यान रखो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कार्टन्स, ट्रैफिक, ड्राइवर, लॉट्स ऑफ डिलीवरी। मान लो आपने लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर कैंसिल करा तो वो पहुँच के फिर वापस जाता है ना। इसलिए ऑथर अग्री करेगा इस बात पे कि कभी भी जब आप कुछ ऑर्डर करो तो उसका एनवायरमेंट कॉस्ट भी ध्यान में रखो, अदर कॉस्ट ध्यान में रखो, इकोसिस्टम को भी ध्यान में रखो जब भी कभी आप ऑर्डर करते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑथर वांटेड टू अवेकन अस, हमें अवेक करना चाहता था। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप समझ रहे होंगे हम जो कर रहे हैं, पैसेज को इसी तरह सॉल्व किया जाता है। स्पीड ये होता है जब आप अकेले बैठ के करते हो, बहुत ध्यान से। सो व्हाट इज द स्टेप, what are some of the steps to follow? First, read the question, underline the keywords, and then read the passage, and then come up to the question and answer it। okay, so this will be the best idea। पूरा पैसेज नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो आपने हाईलाइट करा है वो आप ढूंढ लो, आप समझने की कोशिश करो। so why does the author suggest that colonization of India was not undertaken by British government? तो आपको क्यों लगता है कि जो कॉलोनाइजेशन थी इंडिया की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ने नहीं किया था, है ना, नॉट अंडरटेकन। सो हम पढ़ते हैं पैसेज को। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय हिस्टोरियंस एज रीजंस व्हाई EIC। EIC का क्या मतलब होता है अगर आपको नहीं पता, जब आप पैसेज पढ़ोगे पता हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबल टू गेन सक्सेस ओवर इट्स एनिमी इन इंडिया एंड इन 18th century। तो क्या लगता है आपको कि ऑथर ने which of the following been put historians by historians कि हिस्टोरियन को क्या लगता था रीज़न कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सक्सेस करा इंडिया पर, सक्सेसफुली राज करा। now which of the following can be inferred from the passage above? Inferred means after reading the passage you can finally find it। choose what does the author mean when they say that East India Company traders and Indian bankers spoke the same language। so anything which is in quotation mark you will find that in the passage itself। तो ये जब आए आप वहाँ पे एकदम rigid हो जाना क्योंकि I have to find the answer। ठीक है, last question, based on the information in the passage above which of the following is the authors most likely to agree with? again most likely to agree with में author ने जो discuss किया है वो बात आपको समझ में आनी चाहिए।
आप अपने मन की कोई भी बात राइटर से एग्री नहीं करा सकते। ऑथर ने किस रीज़न से उस पैसेज को लिखा है वो आप समझे कि नहीं, जैसा कि हमने पिछली पैसेज में देखा। Author wanted you to save time, okay, do that, but make sure that whenever you are ordering consider ecosystem as well, ठीक है। So let us see क्या क्या पैसेज है। आपके सामने 2 स्लाइड होंगे, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग 2 मिनट्स टू ईच एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। Your time starts now।
All right, hope you are done with reading the passages now. So let us discuss the words, the questions that we have just read. Why does the author suggest that the colonization of India was not undertaken by? तो ऑथर बोल रहा है कि जो इंडिया में राज करा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्यों? ठीक है, so let us see. Because the East India Company, a private corporation, initially seized power and brought India under its rule. बहुत हद तक एकदम सही लग रहा है, तो देख लेते हैं. Because the British government was short of fund, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं था, and did not have resources to colonize India, गलत. Because the British government had other priority at the time and did not give attention to India, no. Because EIC, a private corporation, had a symbiotic relation with the British Parliament. अब हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि इन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही क्वाइट रिलेटेड सा लग रहा है, तो दोनों ऑप्शन को एक बार फिर से मैच करते हैं. बिकॉज द EIC a corporate corporation had a symbiotic relationship with the British Parliament. बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप तो था, ठीक है, बट क्या ये कहता है कि ये रीज़न था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडरटेक नहीं किया था? तो अगर आप ध्यान से देखो तो EIC ने सबसे पहले वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर को खरीदा, उसके बाद फिर उन्होंने हम पर राज करा, ठीक है. सो दैट वाइज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, not the D. According to the author, which of the following have been put forward by historians as reasons why EIC was able to gain success over its enemy in India in the 18th century? A massive salary paid to its soldiers. Do you think that? No, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. सो अगर ये नहीं है तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है. The support that the EIC received from British Parliament, of course, क्योंकि उन्होंने वहाँ के मेंबर MLAs को ही खरीद लिया था, है ना. जो MP MLAs होते हैं उनको ही खरीद लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही खरीद लिया, तो पूरा सपोर्ट मिल गया उन्हें. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ये भी गलत, ये भी गलत. Now which of the following can be inferred from the passage itself? Passage above. Indian bankers were keen to see British rule in India. ऐसा कहीं mentioned है? नहीं. हमें अपने आप से पूछना है कहीं mentioned है या नहीं mentioned है, चाहे implicit और explicit. Indian bankers prefer to work with EIC rather than with Indian rulers. ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, बट ये वाली बात कहीं मेंशन नहीं है. दैट इज वाई सेट की जो नहीं है कि पूरा का पूरा गलत हो. 50% स्टेटमेंट में भी करेक्ट बट 50% इनकरेक्ट, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है आपका. नाउ द EIC ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग मिलिट्री ग्रुप टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्पेंड इट्स एनर्जी ऑन बिल्डिंग अ मैसिव आर्मी. ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं. तो हमारे पास ऑप्शन बचता है डी. चेक कर लेते हैं. द EIC, अगर आपको इस पर भी कंफ्यूजन हो जाए ना तो फिर छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए. द EIC वॉज वेरी कंसर्न विद मेकिंग प्रॉफिट्स फॉर इट्स इन्वेस्टर, ओके यस, एंड वॉज गुड एट इंश्योरिंग लाइन्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडियन बैंकर्स, यस. तो जैसा कि आपने देखा उसमें साफ साफ लिखा हुआ था. सो दिस इज द आइडिया दैट कैन बी इन्फॉर्म फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. नाउ what does the author mean when they say that the EIC trader and Indian bankers spoke the same language? So what do you mean by speaking the same language? They use the same accounting system? No, ये कुछ ज़्यादा literal हो जा रहा है. They converse with each other in Hindi? No, this is again a literal same language. They understood each other well and agreed on many things. Okay, ये कह सकते हैं. They both wished to see the commencement of British rule in India. ऐसा कुछ नहीं था. So this is the one that is the correct option. Based on the information in the passage above, which of the following is the authors most likely to agree with? So, private corporations have nothing to gain from developing a relationship with government. So, what do you think? क्या लगता है? Private corporation, based on the information in the passage above, which of the following is the author most likely to agree with? Again, देखना होगा बड़े ध्यान से कि प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन है उनका नथिंग टू गेन फ्रॉम डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, ऐसा था? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत. रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ ब्रिलियंट मैन, ओके, एंड शुड बी सेलिब्रेटेड नेशनली. लो, काट दो इमीडिएटली. इट इज़ मच बेटर फॉर अ नेशन टू बी कॉलोनाइज्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट देन अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन. तो ये क्या लगता है आपको? क्योंकि राइटर कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर राज नहीं किया था, बल्कि ये प्राइवेट कंपनी EIC ने राज किया था. तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा बोल दे कि भाई कोई भी नेशन है अगर वो कॉलोनाइज्ड हो रहा है तो फॉरेन गवर्नमेंट करे, ना कि कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन करे?
आई डोंट थिंक कि ऑथर का कहीं भी इंक्लिनेशन इस तरह का होगा. Now advantages such as better weapons will only carry a colonizing power so far, and it will eventually have to ensure it has enough resources to achieve its aim. ठीक है, so option D is the most correct option I would say, जिसमें कि आप समझ सकते हो इस पैसेज को पढ़ के. So these were the questions for the day. Now since you have watched the whole video, the idea behind making this video was to help you to the extent that you read the passage and make that practice. When you are solving a passage, दो बातों का ध्यान रखना होता है. पहला कि you should have a pen with you, क्योंकि CLAT जो है that is gonna be offline, तो पेन होना चाहिए ताकि आप मार्क करते जाओ चीज़ों को. सेकेंड थिंग, यू शुड हैव अ वॉच विथ यू, टाइमर ऑन, है ना. एग्जाम हॉल में तो टाइमर लगा होगा, वॉच लगे होंगे, बट व्हेन, देखो कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड, योर माइंड कैन बी डिस्ट्रैक्टेड इन अ टू प्लेस इटसेल्फ. ऐसा नहीं होगा कि तीन जगह आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो. जैसे कि अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर वहाँ पे कुछ शेक हुआ है ना, मूव हुआ, आप उसे देखते हो, आपका ध्यान हो गया डिस्ट्रैक्ट. अब तीसरी जगह कुछ होगा ना, तो आपका ध्यान वहाँ डिस्ट्रैक्ट होगा, न कि वहाँ. ठीक है, सो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. आपका माइंड दो ही जगह पे फोकस कर सकता है अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो. इस केस में हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव अ टाइमर ऑन, ताकि हमने अपने एक जो डिस्ट्रैक्ट होने वाले माइंड को टाइमर में लगा रखा है कि ओके टाइमर चल रहा है. एंड दिस इज द रीजन व्हेन यू डू समथिंग विद द टाइमर ऑन, यू आर मोर फोकस्ड, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रैक्ट होने वाला माइंड है ना, वो टाइमर पे लगा हुआ है. सो अब वो तीसरी जगह डिस्ट्रैक्ट होगा भी ना, तो तुरंत वापस आएगा वहाँ पे. So do this thing, do this practice. Whenever you solve a passage, have your timer on, and while having the timer on, then solve the passages. ताकि आप देख सको कि within 5 minutes आप एक passage कर पाते हो कि नहीं. And still you think you're lagging in understanding. Make sure you are reading every day. Reading तो last minute तक मत छोड़ना. You have to be very good reader, you know, to solve this lengthy passage. All right. So this was a nice session, guys, with you, and you must subscribe to our YouTube channel for regular videos, informative videos, and you can also join our Telegram channel and other social networking sites for regular updates on them. Thank you so much for staying till the end. Stay tuned, stay happy.